کھاؤ. مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک نہیں ہے یا بھروسہ نہیں ہے؟ اس میں زہر نہیں ہے. اب بے فکر ہو کر کھاؤ. مرو گے نہیں، پیٹ بھر جائے گا. کیا بکواس کر رہی ہو جاریہ؟ مجھ میں تمہاری بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے. جاؤ یہاں سے. مجھے اکیلا چھوڑ دو یہاں. میں اکیلا چھوڑ دوں تاکہ منصوبے بناؤ اور ہمارا گھر اجاڑ دو؟ ہم پہلے ہی اجڑ چکے ہیں. تم اندھی ہو جو سب نہیں دیکھتی. میں اندھی ہوں، بہری ہوں، پاگل ہوں. تمہارے تو ہوش و حواس بحال ہے نا. تم ہی مجھے سمجھا دو. میں اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں پگلی. میں غسل خانے بھی جاؤں تو اس کی خبر مختار کو ہوتی ہے. یہ کوئی چھوٹا عذاب ہے؟ اس گھر سے بہتر تو قبر ہوگی. یہ سب تمہارا ہی قصور ہے. میں قصوروار ہوں یا تم؟ جا کے مختار کے پیروں میں گر گئیں. اس قدر گریا کیا کہ وہ ہمارے غرور کو کچل کر ہماری جان بخشنے پر تیار ہو گیا. اچھا، مطلب تمہاری اس بگڑی ہوئی طبیعت اور ٹیڑھے تیور کا راز وہ امان نامہ ہے جو مختار نے ہمیں دیا تھا. ہائے، میں مر جاؤں تمہارے پامال شدہ غرور پر. جب ایک مرد کا غرور پامال ہو جاتا ہے تو اس کی غیرت رونے لگتی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں. یاد ہے جس دن کوفے کی عورتوں نے تمہیں پتھر مارے تھے؟ میں نے تم سے کتنے التماس کی تھے کہ عمر چلو کوفہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر تمہاری غیرت رو رہی ہوتی تو تم اسی دن کوفے کو 3 طلاق دے دیتے. تو تم اچھی طرح سمجھتی ہو اس مرد کے دکھ کو، غرور جس کا پامال ہو گیا ہو. میں نے کچھ ایسے پر والے سفید پوش لوگ دیکھے جو آسمان سے اترے اور شیطان کی فوجوں پر ٹوٹ پڑے اور پلک جھپکنے میں انہیں مار بھگایا. یہ بکواسیات کیا مختار کا نیا دعویٰ ہے؟ ایک شیریں زبان شاعر کا کلام ہے جو کوفے کے ہر گلی کوچے کے لوگوں کا ورد زبان بن گیا ہے. مختار نے شعر کے کہنے والے کو بہترین صلہ بھی دیا ہے. یہ کذاب تو مقام رسالت کی لالچ رکھتا ہے. اے کاش میں نیزے کے سائے کی شرط نہ رکھتا. یہ تو عراق کے سورج کی دھوپ کے نقصانات میں سے ہے جو انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں رہتی. ورنہ یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ مختار کو مہلت دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے. کیا بات ہے حکیم؟ کیا یہ پاؤں ٹھیک بھی ہوگا یا مر جانے کے بیٹے کے پیر کی طرح ہمیشہ کے لیے سڑ گیا ہے؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس ہیبت ناک اور تپن والے زخم سے اب صرف ایک مختصر سی خراش باقی رہ گئی ہے. واقعی گھبرائے مت، آنکھیں کھول کر اپنے قادم کے موزے کو دیکھیے. شاباش حکیم، واقعی تم مسیحا ہو میرے. اپنے منہ میاں مٹھو کا محاورہ نہ لگ جائے، ورنہ یہ زہریلا زخم سوائے موت کے ہرگز ٹھیک نہ ہوتا. ناچیز کی جادوئی دواؤں نے اس زخم کو ٹھیک کر دیا. یعنی کیا میں پھر سے عصا کے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں؟ آپ کا پاؤں اس دن سے بھی زیادہ اچھا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے. آج کے بعد اچھل اچھل کر ٹڈے کی طرح چل سکتے ہیں. دیکھ رہے ہو بنشس، میں ایک عجم کی تلوار کے زخم سے نجات پا گیا. خدا کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے.
शिमर के लिए ये बहुत शर्म की बात होती कि उसका पांव उससे पहले कब्र में चला जाता, वो भी एक अजम की तलवार की ज़रब से। ये पैर जब तक ईरानी कयान के सीने की फसलियों को न तोड़ दे, शिमर माफ नहीं करेगा। ईरानी कियान से इंतकाम लेने के लिए अभी काफी वक्त पड़ा है। शेम्र, तुम्हारे पांव के जख्म ने हम सबको परेशान कर रखा था। अब जबकि हम इसके शर से निजात पा चुके हैं तो अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुख्तार के जासूस लम्हा ब लम्हा हमारे करीब आते जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। तमाम साथियों को बाखबर कर दो। आज ही रात हम कूफा से चले जाएंगे। मेरे पास मुख्तार की तरह पर वाले कासिद नहीं है जो फौरन पैगाम पहुंचा दें। आज रात तो नहीं जनाब शिमर, कम से कम एक दिन का वक्त मुझे दरकार है कि तमाम साथियों को मुत्तला कर सकूं। मगर बहुत तेजी से काम लेना। तुम जानते हो कि मुख्तार एक जबरदस्त शिकारी है। बहुत खूब जनाब हकीम, वादा पूरा करूं? यह कबूल कीजिए। आपका ये एहसान किस हवाले से है? आपके इलाज का आखिरी हक ज़हमत है। तो फिर जो खतरा मैंने अपनी जान पर लिया उसकी कीमत का क्या होगा? इस तरह शिमर के पास आना, वो भी इन हालात में जब पूरा कूफा मुख्तार का जासूस है, इसकी क्या कीमत होगी शेख? और फिर ये इस काम की असली कीमत भी नहीं है। आप अनकरीब कूफे से चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा और वो ताने दुसने जो हमेशा मुझे सुनने पड़ेंगे। अगर मुख्तार को ये पता चल जाए कि कातिल हुसैन का मेरे हाथों से इलाज हुआ है, पहले तो मेरे हाथों को काट देगा, उसके बाद वो मेरे सर को कलम कर डालेगा। हकीम साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं शिमर। हकीम के काम की कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसे तुम जितना भी दे दो कम होगा। हकीम साहब, तुमने मेरी जान बचाई है। ये कोई छोटी खिदमत नहीं है, और मैं भी कोई अंधा आदमी नहीं हूं जो खिदमत गुजारों की कदर ना करूं। आप मेरे इलाज के बदले में मेरी जान तो नहीं मांग रहे? मांगते हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शेख? मुझे अगर आपकी जान लेनी हो तो मैं आपका इलाज क्यों करता? कितना चाहते हो? आप अपनी सखावत से जितना भी दे दें, ये कीमत आप खुद मुअय्यन कर दें। ठीक है। इस घर के सरदाब में इतने सोने के सिक्के मौजूद हैं कि हम मुख्तार के खिलाफ पूरा एक लश्कर तैयार कर सकते हैं। चलो हकीम। कैसी ताउफुल ज़्यादा बदबू आ रही है। हो सकता है उन मरे हुए चूहों की बदबू हो जो जाल में फंस गए हो। ये सरदाब सोना चुराने वाले चूहों से भरा हुआ है। ये लो हकीम, ये रहा डोल, और ये वो खजाना जिसका मैंने वादा किया था। जितना सोना इस कुएं से निकाल सको वो तुम्हारा होगा। मकबरा है फिरौनों का। उन फिरौनों का मकबरा है जो सोने की बू सूंघकर बदल जाते हैं और अपनी बात पर साबित कदम नहीं रहते। वही सोने की सिक्कों की थैली काफी है मेरे लिए जनाब। मुझे डर लग रहा है, मैं चलता हूँ। कहाँ चले तबीब साहब? तुम पैसों की लालच रखते थे, मर्द बनो, अपनी बात पर कायम रहो ना। मुझे कुछ
नहीं चाहिए जनाब शिमर। मैं इस रकम को भी वापस देने को तैयार हूँ जो आपने मेरी मेहनत के मुझे दिए थे। ये रकम तुम्हारी मीरास खाने वालों के लिए है हकीम। शिमर यतीमों का माल नहीं खाता। मैंने आपकी जान बचाई है जनाब शिमर। क्या ये इंसाफ है कि मुझे मार डालो? खुदा की कसम इंसाफ नहीं है, बेगैरती और जुल्म है। फिर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। अपना जुर्म तो सुन लो इब्ने आशस, तुम्हारा इल्म कानून से काफी ताल्लुक है। जुर्म हकीम बताओ ताकि वो जान ले कि शिम्र एक इंसाफ पसंद शख्स है। हकीम ने अपने गुमान में ये सोच लिया था कि शिम्र एक मीठा आदमी है, लिहाजा खामोश रहने और इलाज करने के बदले इससे बड़ा मुतालबा किया जा सकता है। जब इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेगा तो बकाया हिस्सा एक बड़ी कीमत के बदले मुख्तार के हवाले कर देगा। जल्दी करो शिम्र, वक्त कम है और तबीब को भी बहुत देर हो रही है। मैंने सुना था कि तबीब हजरात मुर्दे और मौत को देखने से नहीं डरते। डरो मत तबीब, डरो मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस वक्त कूफे से भागने के लिए सबसे पुरअमन रास्ता असली दरवाजा है। असली दरवाजा? ये नामुमकिन है शिम्र। सिवाय शर्तों के चारों तरफ ऐसे जासूस हैं जो आम लोगों के लिबास में हैं और कड़ी नजर रखते हैं। हम कच्चे रास्ते से क्यों ना जाएं? कूफे के कच्चे रास्ते में प्यान जैसा एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ है और अपने शिकार के इंतजार में है। मैं कूफे के कच्चे रास्ते के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जो किसी के वहम गुमान में भी ना होगा। मुख्तार के आदमी भी इसी भरोसे में हैं। वो समझते हैं कि हम खुफिया रास्तों से भागेंगे। हमें दुश्मन की सोच के खिलाफ चलना होगा। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग असली दरवाजे से भागेंगे। कौन है? मलकुल मौत। मैं तुम्हारे बड़े से सर को पका के अमीर मुख्तार के आगे पेश करूंगा। क्या ये तुम हो सन्नान? खोलो दरवाजा बेवकूफ, मैं ही हूँ। देखो उमर, मुख्तार ने पिछली हंगामा आराई के बाद अपने तमाम तर अहदनामे खत्म कर दिए हैं। छोटे और बड़े किसी पर रहम नहीं करता। इससे पहले कि देर हो जाए कुछ अपनी फिक्र करो। मैं उसके खिलाफ हंगामा आराई में शरीक ही नहीं था। जो कुछ किया है शिमर और शबस ने किया है, और फिर उसने मुझे मकतूब अमान नामा दिया है। हाँ, क्या तुम वाकई मुख्तार के लिखे हुए पर भरोसा कर रहे हो? तुमसे ये बईद है उमर। तार उस नामे के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक को मैदान से दूर करना चाहता था, जो उसने कर लिया। बिला तकल्लुफ एक बात कहूं उमर, तुम अपनी बीवी के धोखे में आ गए हो।
तुम्हारी आज ये जिल्लत बानो जारिया के करतूत की वजह से है, जिन्होंने अपने भाई से साजबाज करके उमर साद अबी वकास को बूढ़ी औरतों की तरह खाना नशी बना दिया। अगर तुम मैदान में उतर आते तो मुख्तार का क़याम हरगिज कामयाब ना हो पाता। मुख्तार से वहीद नहीं कि उसने किराए पर तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मुझे वसवसे करके शर्त तुड़वा दे। मैं क्या बेवकूफ हूं? मैं बाजी मुख्तार के हाथ में हरगिज नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उस दोस्ती और मोहब्बत की खातिर तुम्हारे पास आया था। आज मैं मुख्तार की महफिल में मौजूद था। उसने अपने साथियों से वादा किया कि कल मैं उस शख्स को कत्ल करूंगा जिसकी शक्ल सूअर से मिलती है, और तुम लोग उसकी मौत से बहुत मसरूर हो गए। उसने तुम्हारी निशानियां बताई हैं उमर, खुद ही समझो। कहाँ चले उमर? कब्रिस्तान। मैं तुम्हारी शक्ल देख देख कर थक गया हूँ जारिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है उमर, अपने दोस्तों के धोखे में मत आओ। वो लोग तुम्हें जोश दिला रहे हैं ताकि तुम मुख्तार से लड़ पड़ो। अगर मुख्तार में मुझसे लड़ने की हिम्मत होती तो इतने साल सब्र नहीं करता और मौके की ताक में ना रहता। वो धोखे से मुझे मखलूब करना चाहता है। मैं अपने भाई मुख्तार को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नामुमकिन है कि वो अपने वादे को तोड़ दे। बकवास बंद करो और इतना अपनी माँ और अपने भाई पे फख्र मत करो। दोबारा तुमने उसका तस्करा किया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं मुख्तार को इत्तला देकर तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। मौका मिल सके तो जरूर अपने उस सींग वाले भाई को इत्तला देना। मेरी आज की ये जिल्लत तुम पर भरोसा करने का अंजाम है। तुम उस चाल का मजेदार निवाला हो जिसे मुख्तार ने मेरे लिए बिछाया है। तुम होश में तो हो उमर? ये क्या फजूलियात हैं? तुम्हारी और मुख्तार की जात एक ही है। तुम दोनों सरदारी और इख्तिदार के आशिक हो। तुम लोगों पर भरोसा करना हिमाकत है। तुमसे मेरी जवानी का इश्क आज शदीद नफरत में बदल गया है। मुझे भी काफी अरसे से एक सच बेचैन कर रहा है जो मैं बोलना चाहती थी। तुम कभी भी मेरे आशिक नहीं थे उमर। तुमने मुझे इसलिए शिकार किया ताकि मुख्तार को शिकार कर सको। जैसे का बदला वैसे ही दिया है मैंने। तुम भी तो मेरे इख्तिदार और शोहरत की आशिक थी। मेरी आशिक कभी न थी। तुम उम्र साद की बीवी बनना चाहती थी ताकि अरब औरतों की सरदार बन सको। मैं अंधी थी उमर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस जमीन में बीज बो रही हूँ। अब रहने दो जारिया। हम जितनी भी बातें करेंगे उतनी ही बात बिगड़ती जाएगी। तुम मलका बनने की आशिक थी और मैं अपने रकीब को कुचलने का आशिक था। मैं मानता हूँ कि हमने काफी खतरनाक खेल खेला। इसकी सजा भी मिलकर भुगत लेते हैं। ये क्या कर रहे हो उमर? तुम्हें निवाला बनाऊंगा, वो काम जिसका उस्ताद मुख्तार है। तुम्हें लुकमा बनाऊंगा ताकि मुख्तार को जाल में फंसा सकूं। बच्चे, अरे कनीज़ो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम एक हैवान हो संगदिल शख्स। एक सरदार के लिए हमेशा जीत ही सब कुछ होती है जारिया। अब तुम मेरे लिए एक दुश्मन की हैसियत रखती हो। इस बाकी औरत को घर के सरदाब में कैद कर दो और मुंतजिर हो जब तक मेरा पैगाम आए। लानत हो तुम पर उमर। मुझे अब पता चला कि तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाता था वो सब सच था। मुझे अब समझ में आया कि तुमने हुसैन के घर वालों के साथ क्या किया होगा। मैं तमन्ना करती हूँ कि जिंदा रहूं और तुम्हारी मौत पर नाचूं, खुशी के कपड़े पहन के हर हर। ये तमन्ना तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पागल मामू को फांसने के लिए बेहतरीन लुकमा है। उसने हमारे घर के राज मुख्तार को पहुंचा दिए। उसने हमारे साथ खयानत की है। इसे कैद करना मजबूरी है। जिस दिन ये हमारे मुआसरे को तोड़कर मुख्तार के घर गई थी, आपको उसी दिन इसके हाथ पैर तोड़कर मार देना चाहिए था बाबा। अभी भी वक्त है हमारे पास। मेरे साथ आओ मेरे बच्चे।
خدا کی فوج کی کیا خبریں ہیں؟ بہت خوش ہیں وہ لوگ، اپنے اہل و عیال کے پاس رہ کر مزے سے کھا پی رہے ہیں اور ہر مہینے خوشی سے تنخواہ لے لیتے ہیں۔ پریشان لگ رہے ہو ابراہیم؟ نہیں، پریشان نہیں ہوں ابو اسحاق، میں زمین و آسمان کے بیچ میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس دن حکم جہاد ہو جب ہمارے فوجی اپنی آسائشوں اور گھر بار سے الگ ہونے کو تیار ہی نہ ہو۔ آخر کیوں ہمارا لشکر کوفے میں آرام کر رہا ہے جبکہ ابن مرجانہ موصل پر قبضہ کر چکا ہے اور کوفے پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے؟ تمہارے کیوں کا جواب تمہارے سوال میں ہی موجود ہے ابراہیم۔ جب تمہاری طرح کے سردار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو مطلب دشمن ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ میرے بابا مالک اشتر کی روح کی قسم، میں نے ایک لمحے کو بھی تم پر اور تمہاری تدبیروں پر شک نہیں کیا۔ لشکر کا کوفے میں رہنا یقیناً قیام کی مصلحت کے مطابق ہے۔ میرے اس خیال کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کے کاندھوں سے شاید کوئی بوجھ ہلکا کر سکوں۔ امیر، حکم کیجئے کہ ہر جگہ یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے کہ آپ ان کے سروں کے بدلے سونا دیں گے تاکہ پورا عراق عرب ان کے لیے خطرہ بن جائے۔ اگر امیر کو برا نہ لگے اور بے جا دخل اندازی نہ کہلائے تو میں بھرپور طریقے سے میدان میں آ کر فتنے کی جڑیں کاٹنے کو تیار ہوں۔ نہیں ابراہیم، بہتر یہ ہوگا کہ تم سب سے بڑے فتنے کی طرف جاؤ۔ خدا گواہ ہے کہ میں سب سے زیادہ مرجانہ کے بیٹے سے لڑنے کی تمنا رکھتا ہوں، مگر کیا کروں کہ اس وقت حکومت میں جکڑا ہوا ہوں اور مجھے یہیں رک کر حکومتی معاملات دیکھنے ہوں گے۔ یہ لو، یہ ابن مرجانہ سے جہاد کا حکم ہے۔ صرف اتنا دھیان رکھنا ہے ابراہیم، شیطان سے لڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی تلوار جس کی ایک نوک دیانت کی ہے اور ایک نوک تدبیر کی۔ لے جاؤ اسے۔ میرا گدھا، میرا گدھا، میرا گدھا، چلو میرے گدھے کو مارنا مت، چلو، میرے گدھے کو کھانا مت۔ تمہیں اور تمہارے گدھے کو ایک ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، اس کے گدھے کا خیال رکھو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ چلو۔ مالک اشترانہ خیبہ درود ہو، مجھے بچا لے، مجھے بچا لیجئے، آپ میرے اور میرے گدھے کی ضمانت کرا دیں۔ اہلن و سہلن سردار۔ اہلن ابن کامل، اہلن۔ مجرموں میں سے ہے کیا؟ شمر کا غلام ہے اور رستم کہلاتا ہے، ایرانی ہے۔ سنا ہے کربلا میں لکڑی سے وہب کے سر پر مار کر اس نے شیر دل خاتون کو شہید کیا تھا۔ اوف میرے خدایا، کیا تم وہاں تھے؟ میں نے بھی سنا ہے کہ مختار قذاب ہے، تمہیں یقین آ جائے گا کیا؟ تم شمر کے غلام ہو یا نہیں ہو؟ ہاں میں ہوں غلام۔ سرکار آپ ہی بتائیے، کیا شمر کا غلام ہونا جرم ہے؟ بڑا معروف نام ہے تمہارا، رستم۔ خدا کرے کہ غیرت مندی میں بھی رستم پہلوان کی مانند رہو۔ مجھے بچا لو سردار، تمہاری داڑھی کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ تو پھر اپنے اور گدھے کے بارے میں پریشان مت ہو، مختار کی عدالت کو خاص و عام سب جانتے ہیں۔ جاؤ اور امیر مختار کی مدد کرو تاکہ شمر لعین کو شکار کر سکے۔ جاؤ۔ رستم ایک شمر نامی دیو کا غلام تھا جو اس کی اجازت کے بغیر پیشاب کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ مجھ پر حمام جانا حرام تھا، سالوں سال حمام نہیں دیکھا میں نے۔ میں مجبور تھا کہ مٹی سے طہارت کروں اور کچی زمین پر ہی سو جاؤں۔ کتوں کا بچا ہوا کھانا ملتا تھا، میں تو مجبوراً شمر کا غلام بنا۔ میں تو اس کی اطاعت کرنے پہ مجبور تھا۔ رستم ایک چوٹی کو مارنے کے بھی خلاف ہے، انسان کو کیسے مار سکتا ہے؟
तुम्हारी फरियाद खत्म हो गई? जी मैं चुप हो गया। वाकईन तुम्हारा नाम रुस्तम है? नहीं जनाब, आपके खादिम का नाम फिशंग है। शिमर मलून मुझे रुस्तम पुकारता था और मेरे गधे को रख्श। बकौल उसके वो हमारी कौम और हमारे अफसानों के पहलवान का मजाक उड़ाना चाहता था। लानत है तुम पर और तुम्हारे गधे पर कि तुम ईरानियों के लिए शर्म का बाइस बन गए हो। खबीस आदमी, शिम्र जैसे जालिम की गुलामी से तुझे क्या मिला? उसे जहर दे के क्यों नहीं मार दिया तुमने? खुदा की पनाह, मैं उसकी कबा को भी हाथ लगाता तो वो 7 दफा उसको धोता था। मेरे हाथ से कुछ खाता नहीं तो जहर कैसे देता? फिशान, ये कहने से तुम्हारा जुर्म माफ नहीं हो जाता कि तुम मजबूर थे। तुम एक खातून के कातिल हो जिसका नाम उम्मे वहाब था, जो जुल्म के खिलाफ थी और तुम जैसों की हामी थी। हजरत हमजा का कातिल भी हिंदा जिगर खुरा का खरीदा हुआ गुलाम था। मैं उस हुक्म के मुताबिक जो रसूल अकरम ने अपने चाचा हमजा के कातिल के बारे में दिया था तुम्हें माफ कर रहा हूँ, बशर्ते कि तुम शिमर को हमारे हवाले कर दो। मैं आपकी दाढ़ी पर कुर्बान। आप अपने नौकर को आजाद कीजिए ताकि शिमर को हाथ पांव से बांधकर आपके हवाले कर सकूं। देखा, तुमने फिर झूठ बोला। तुमने तो कसम खाई है कि शिमर दुम्बे की खाल पहनकर कुफी से भाग चुका है, फिर तुम इसे कैसे बांध के ला सकते हो? खुदा की पनाह, मैं फिर कसम खाता हूँ कि शिमर दुम्बे की खाल की कबा बनाकर दुम्बे के रेवड़ में शामिल होकर फरार हो गया। कहाँ जाएगा वो? मदाइन के करीब एक खंडर है जो पहले कारवां सरा था, वहाँ मुझे बुलाया है। अगर मैंने देर कर दी तो समझ जाएगा कि शिमर की खोज लगाई जा चुकी है। कब पहुँचने का वादा किया था? आज ही। मैं मदाइन जा रहा था कि शहर के दरवाजे पर मुझे उन लोगों ने पहचान लिया। अगर आज शाम तक मैं अपने आप को शिमर तक ना पहुंचाऊं तो वो समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता अमीर। भाई नहीं कि शिमर मलून ने इस बेकार शख्स को लुकमा बनाया हो ताकि वो खुद हमें इस जाल में फंसाकर भाग सके। फौरन हुक्म दो और कूफे के तमाम असली और फरीद दरवाजे बंद करवा दो। सबकी तफ्तीश की जाए, चाहे इंसान हो या चौपाए। अमीर का हुक्म पहले ही जारी हो चुका है, तमाम रास्ते कड़ी निगरानी में हैं। फिशान, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम खयानत का इरादा नहीं रखते? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मगर कोई ऐसा हो जिसे शिमर ना पहचानता हो। शिमर कुत्तों की सी हिस्स रखता है, 10 फुर्सत से ही खतरे की बू सूंघता है, खासकर घोड़ों की आवाजें। अगर आपके आदमी हमारा पीछा करेंगे तो नामुमकिन है कि उन्हें वहां पर शिमर का सहाया भी मिल सके। आपका खादिम वादा करता है कि शिमर को नींद में हाथ पांव बांधकर अमीर के पास लेकर आ जाएगा, आपकी खिदमत में। ज़रबी। जी सरकार। शिमर तुम्हें पहचानता है क्या? नामुमकिन है सरकार, मैंने तो उसे देखा है मगर उसने मुझे कभी नहीं देखा। तुम फिशन के साथ जाना चाहोगे? जी हाँ सरकार, आप जान भी मांगे तो दे दूं। बहुत खूब, जाइए हम भी देखें क्या करते हो। जो हुकुम सरकार। माफी चाहता हूँ, अगर आप कोई मकतूब अमानामा मुझे दे दें तो मेरी 7 पुश्तों पर आपका ये एहसान होगा। तुम शिमर को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी माफी का हुक्म लिख दूंगा। जा सकते हो। बिन कामिल। अमीर। कियान से कहो कि उसके आदमी किसानों और गांव देहात के गरीबों के जैसे लिबास में उनका पीछा करें। जी अमीर। कुछ खबर है बिन फुरस की? बिन फुरस आज उम्रे साथ के घर गया और उससे मिला है। एहतमाल है कि उमर साथ बिन फुरस से मिलने के बाद अहदनामे को बातिल कर दे। इसी वक्त उमर के घर जाओ और उसकी हालिया खबर मुझे ला कर दो। जी अमीर। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मेरा मालिक घर पे नहीं है सरदार। कहाँ गया है वो? अपने खानदान वालों से मिलने गए। ताज्जुब है, लगता है घर में बैठे रहने से उम्र साथ दिख गया है और हवा खाने गया है। बाहुक्म अमीर मुख्तार, घर के कोने कोने की तफ्तीश की जाए।
رحم کیجیے سردار، اگر مالک کو ان سب باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ ہم سب کو زندہ دفنا دے گا۔ گھر کی مالکن کہاں ہے عورت؟ سب گئے ہوئے ہیں، مالک، مالکن، بچے۔ یہ گھر چھٹکوں کی کڑی نگرانی میں ہے، جو بھی اس گھر میں آتا جاتا ہے ان سب کی تفصیل مجھے پتا ہے۔ تمہارا مالک کیسے گیا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ خدا کی قسم ہم بے قصور ہیں۔ کیا اس گھر کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے؟ اس دروازے کے علاوہ پیچھے کا ایک راستہ ہے۔ سردار، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے۔ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں سردار، عمر بھاگ نکلا ہے۔ مان گیا تدبیر امیر مختار کو، کیسے اس چوہے کو اس کے سوراخ سے باہر نکالا ہے۔ عمر نے اپنی اس حرکت کے ساتھ امان نامے کی شرط کو باطل کر دیا اور اپنی موت کا حکم خود ہی لکھ دیا ہے۔ کچھ افراد یہاں رک جائیں اور حالات پر کڑی نظر رکھیں۔ چلیں۔ یہ کیسی آواز تھی؟ بلیوں کی آواز ہے۔ بلی؟ کیا تم نے بلی کی میاؤں کی آواز سنی؟ پانی کا مٹکا ٹوٹنے کی آواز تھی۔ جو کچھ بھی ہے اس سرداب کے اندر ہے۔ یقین کیجیے بلی کی آواز ہے۔ ہم نے سرداب میں بلی چھوڑی ہے تاکہ چوہوں کو کھا جائے۔ یقیناً اسی بلی نے کوئی کوزہ توڑ دیا ہوگا۔ خدا کرے کہ تم لوگوں کا جھوٹ سچ ہو جائے، ورنہ تم سب کی زبانیں کاٹ کر تمہارے کانوں پر ٹانگ دوں گا۔ دروازہ سرداب توڑ دو۔ سر اٹھاؤ بہن، مجھے دیکھو۔ سالوں سے بہنوں والی نظریں دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ عمر احسان میری بہن کو مار کر مجھے رلائے گا۔ یہ جو تم زندہ رہ گئی ہو یہی کافی ہے۔ میں سالوں تک ایک جھوٹے عشق کی ہوس کی آنکھ میں اسیر رہی ہوں۔ میں اندھی تھی، یہ نہ سمجھ سکی کہ شیطان سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں یہ نہ سمجھ سکی کہ شیطان کے بچے کو اپنے پیٹ میں پال رہی ہوں۔ میرا بچہ، میرا ٹکڑا، جو بچہ میرے خون اور دودھ سے پروان چڑھا ہے، آج وہ اپنے باپ کے ساتھ مل گیا ہے کہ اپنی ماں کو مار دے۔ لعنت ہو تمہاری غلیظ تقدیر پر جاریہ، لعنت ہو۔ اپنی تقدیر ہم خود بناتے ہیں میری بہن۔ جن دنوں تم عمر کے عشق میں دیوانی تھی، میں نے یہ دیکھ لیا کہ تمہاری خوش نصیبیوں کا پروانہ تم سے دور ہو گیا ہے۔ میری مخالفتیں بھی تمہارے سیاہ بخت کو سفید نہ کر سکی۔ کاش آپ میرا سر کاٹ دیتے بھائی، کاش میرے پاؤں توڑ کے ڈال دیتے، کاش آپ مجھے اجازت نہ دیتے کہ شیطان کے حجلے پر قدم رکھوں۔ اگر تم میری سگی بہن ہوتی، اگر ہم ایک ماں کی اولاد ہوتے تو خدا کی قسم میں زمین و آسمان ایک کر کے اس غلط رشتے کی رکاوٹ بن جاتا، مگر سوائے رضامندی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں جو بھی کرتا تھا اس کے بعد کے جملے نہیں جھیل پاتا۔ تم میری ماں کیوں نہیں تھی دعا؟ ہائے خدایا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ آؤ میری بچی،
आओ कि तुम्हारी माँ की आगोश में सारी जिंदगी का अफसोस भरा है। आओ। मुझे नहीं पता, शायद मैं ही कसूरवार हूँ कि मैंने हमेशा अपनी सौकन की बच्ची की नजर से तुम्हें देखा। जब तुम लोगों के बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारी माँ के पेट में तुम थी। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ दुनिया से गुजर गई। मैं ताइफ में थी और तुम दोनों मदाइन में। जब मैंने सुना कि तुम्हारे शेरदिल भाई मुख्तार ने तुम्हारी कफालत कबूल कर ली है तो मैंने सुकून का सांस लिया। मगर मुझे जान लेना चाहिए था कि मुख्तार एक मर्द है, वो तुम्हारे लिए माँ नहीं बन सकता। अरे अरे, देख रही हो उमरा, ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। अपना दिल मैला मत करो नारिया, तुम माँ अपने आप को मलामत कर रही हैं, तुमसे क्या वास्ता। अभी देखना, सारे का सारा जुर्म मुझ बदनसीब के सर पर डाल देंगे। हाय खुदाया, तू तो जानता है ना, तूने देखा कि मैंने इस लड़की के हक में ममता दिखाई है। जिन दिनों उम्र के इश्क में इसकी जान खेल उठी थी और गश खाकर गिर जाती थी, वो भूल गई है। अम्मा। हाँ मेरे लाल। सालों पहले दुश्मन ने गैर मरी खंजर से हमारे जिस्म के एक टुकड़े को हमसे जुदा कर दिया था। अब जबकि हक हकदार को पहुंच गया और हमारे जिस्म का टुकड़ा एक नापाक सूअर की चुंगल से नजात पा गया है, जाइए और सालों साल की दूरी के जख्म पर मरहम रखिए। नहीं, मुझे वाजिब पे गुस्ल करना है। क्या यह जुर्म है? बाबा जान, आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, हमें नहाना है। इन हालात में नहाना ठीक रहेगा? हालात? कैसे हालात? ठीक है, सब ठीक है। मुख्तार ने यह नहीं किया कि मैं वाजिब काम छोड़ूं। मुझे वाजिब गुस्ल करना है मेरे बेटे। नहाने के बाद हम कुछ हल्के हो जाएंगे और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम हो उमर? तुम होगे उमर, मैं नहीं। ताज्जुब है, जो अरब अपने मशहूर लोगों को ना पहचाने उसे तो मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा मरहूम बाप अरबों के फकर का बाइस हो। लानत हो शैतान पर। मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या वास्ता है? मैंने कहा ना कि मैं उमर नहीं हूँ। ताज्जुब है, तो फिर उमर साद जैसे क्यों हो? तुमसे क्या वास्ता? तुमसे क्या वास्ता कि मैं उम्र साद की शबीह क्यों हूँ? तुम्हें हक है कि अपना नाम छुपाओ। खुदा उसके और उसके बेटे की मजालिम का बदला उसे जरूर ले। उसने वो काम किया है कि अरब के इज्जतदार लोग उसके खानदान से भी मेल मिलाप रखने से कतराने लगे। बहुत अफसोस होता है इस हाल पर कि एक अरब का इज्जतदार आदमी अपने गुलाम को अपनी सवारी पर घुमा रहा था ताकि वो खामोश रहे, किसी को कुछ ना बताए और उसके छुपने की जगह का बांडा ना खोल दे। तुम्हें यकीन आता है उमर? ओ ठीक आदमी, मैं उमर नहीं हूँ। आखिर ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? तुम्हारी जान की कसम, मेरा दिमाग तो बात मान लेता है, मगर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि तुम मुख्तार की चुंगल से निकल गए हो,
मैं भागा हूँ? मैं क्यों भागा हूँ? चलो बाबा। ये जगह कूफे की हदूद में नहीं है। तमाम कूफे वाले जानते हैं कि उमर साद इब्न अबी वक्कास मुख्तार के अमान नामे के तहत कूफे से नहीं निकल सकता, और आप उमर के उस हम्माम में हैं जो कूफे से बाहर है। उमर का हम्माम? कौन से उमर का? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई साहब? आपको हमसे क्या वास्ता जो इतना तंग कर रहे हैं? चलो बाबा चलो। ये शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी भी शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी भी आवाज होती है भाई, ये जिंदा सबूत है। ये कौन से नहाने का वक्त था बाबा? देखा ना उन्होंने आपको पहचान लिया। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ जाए दरबदर कहेंगे? कहाँ जाए कमबख्त? अबू उमरा के आदमी और जासूस चारों तरफ फैले हैं। अरे क्या गफलत हो गई। यकीनन वो मनहूस बिन खुरस भी मुख्तार का जासूस होगा। हमें धोखा दिया था कि हम शर्त तोड़। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ की दिलजोई करनी होगी। अब वो सब कुछ हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था। मुख्तार किसी एक बहाने की तलाश में था जो उससे मिल गया। अब हम जाएं या ना जाएं, उसने अपना अमान नामा बातिल कर दिया है। अगर जाएं तो उम्मीद है कि अजमी सरदार से बच सके। बात सुनो बेटा, अगर तुम जरा सी चालाकी दिखाओ जैसे कि तुम हो चालाक, एक चाल है जिसके जरिए हम इस परेशानी से बआसानी निकल सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आओ इधर आओ, बताता हूँ। किधर? मुझे मुख्तार से मिलना है। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? मैं उम्र साद का बेटा हूँ, मुख्तार सकफी का भांजा। अच्छा, आइए, आपके मामू आपकी मुंतजिर हैं। खुशामदीद। मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ना थे कि मेरे वालिद साहब को अफसोस हुआ कि आपको इतला क्यों ना दी। मुझे भेजा ताकि आपको बाखबर कर दूं। वो खुद क्यों नहीं आया? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद गुरूर का मसला आड़े आ गया हो। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। फिलहाल तो तोड़ चुका है बेटा। कैसे तोड़ा होगा मामू? आपने उन्हें अमान नामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में है। पक्की बात है? जी हाँ, जब मैं और बाबा घर से निकले वो घर में थी। तुम्हारे माँ बाप के दरमियान कोई बहस नहीं हुई? बहस किस बात की? इस बात की कि इजाजत के बगैर घर से न निकलो। अजीब सी बात कर रहे हैं। उन दोनों में बहस क्यों होनी चाहिए जब ये तय है कि हम सिर्फ जमीनों और बागात को देखने जा रहे हैं। अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा जान बागात को देखकर ही घर वापस आएंगे। बहुत खूब, तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे बाप को न देख ले। क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ रुकूं? हाँ जरूरी है। बिन कामिल। अमीर। अभी इसी वक्त मेरे साथ के घर जाके उसे हमारे पास बुला लाओ। अगर उसने बहानेबाजी की या तलवार निकाल ली तो उसका काम तमाम कर देना। जी अमीर। अबू हारिस, कहाँ मर गई सारी कहानी से? ये सब क्या है?
इस आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। उमर, तुम महासरे में हो। कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला अमीर मेरे मुकाबले पर आया होता। कोई बात नहीं, जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है, उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास उसके सामने खाके जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसुर्दा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरज़ू को हसरत में बदल दे। तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया। अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो। इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए।
इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। तुम्हारे हाथ कट जाए मुख्तार, तुम और तुम्हारी चालबाज बहन ने मेरे बाप को धोखा देकर खाना नशीन बना दिया। अगर वो तुम्हारे झूठे अमाननामे पर भरोसा ना करते और मैदान में उतर आते तो आज तुम्हारा सर इस तश्त में होता। तुम्हारे वालिद को उनके अमाल ने कत्ल कर डाला बेटे। अगर खून का बदला खून है तो फिर तुम भी मौत के मुंतजिर रहो। कब खाता हूँ कि आज से अपनी उम्र के हर लम्हे को अपने कुत्ते मामू के कत्ल के इरादे से बिताऊंगा। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सूल में खुशी के कपड़े पहनकर हिलहिला करूंगी।